بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 1000 برس قبل طالوت اور داؤد نے اسی سرزمین پر سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت آس پاس کوئی طاقتور منظم سلطنت موجود نہ تھی۔ ایران میں طوائف الملوکی کا دور تھا، مصر خانہ جنگی کا شکار تھا، نینوا اور بابل ابھی ابتدائی مراحل میں تھے، یونان میں انتشار کا عالم تھا۔ تاہم جب شام کے بادشاہ انتیوکس کی طرف سے ظلم و ستم کی انتہا ہوئی تو یہودا مکابی نے بغاوت کا پرچم بلند کیا۔ اس وقت چاروں طرف طاقتور حکومتیں باغیوں کی سرکوبی کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ شمال و مشرق میں شام کا سلطان اپنی سطوت و جبروت کا مظاہرہ کر رہا تھا، جنوب میں مصر کے سکندری جانشین ٹالمی موجود تھے، اور مغرب میں روم کی ابھرتی ہوئی جمہوری قوت یونان پر غالب آ چکی تھی۔ یہود کی مقدس سرزمین اور سلیمانی عبادت گاہ بھی یونانیوں کے دیوتاؤں کی حکومت میں تھی۔ اس مایوس کن اور بے بسی کے دور میں یہودا مکابی نے صدق و خلوص کے ساتھ جدوجہد کی اور قربانیوں سے بھرپور قیادت کے ذریعے قوم کو ظالموں کے پنجے سے رہائی دلائی۔ اس نے اپنی جان اور خون سے آزادی کی شمع جلائی اور تاریخ کے صفحات میں اپنی دانشمندانہ قیادت اور شجاعت کی مثال رقم کی۔ یہودا کے بعد اس کا جانشین، اس کا بھائی یوناتن، حکمت عملی اور تدبر میں اس سے بھی کامیاب ثابت ہوا۔ شمعون نے بھی اس عظیم مشن کو آگے بڑھایا اور قوم کو نئی سمت دی۔ بخت نصر کی غارتگری، بابل کی غلامی اور شام کے مظالم کے بعد یہ آزادی اور خود مختاری کا حیرت انگیز کارنامہ تھا جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک روشن باب بن گیا۔ شمعون مکابی نے اپنے بہمت بھائیوں کی جدوجہد کے لگائے ہوئے باغ کا پھل پایا۔ اس نے دشمنوں سے ہیکل مقدس کی تولیت اور ارض موعود کی حکومت حاصل کی۔ اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے وہ سلطنتی یہود کا پہلا بادشاہ بنا۔ اس نے دومتا اکبری کو اپنے ساتھ منسلک کیا، شریعتی موسوی کی ترویج کی، زراعت و تجارت کو فروغ دیا اور رایا کی فلاح و بہبود کو اپنا مقصد بنایا۔ اسرائیلی سکہ سلطنت میں جاری کیا، عدل و انصاف کو شعار بنایا اور خوراک میں اضافہ کیا۔ جب بادشاہ شام نے خراج کا مطالبہ کیا تو شمعون نے اپنے بیٹے جان کو فوج کا سپہ سالار بنا کر روانہ کیا، جس نے شمالی محاذ پر اشتداد کے مقام پر شامی افواج کو شکست دی اور فلسطین میں امن قائم کیا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ بنی اسرائیل زیتون و انجیر کے درختوں تلے پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ ہیکل مقدس کو مزید آراستہ کیا گیا اور قیمتی ظروف عبادت کے لیے وقف کیے گئے۔ شمعون کے بھائیوں کو فطری موت نصیب نہ ہوئی۔ ایک میدان جنگ میں شہید ہوا، دوسرے کو فریب سے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ مگر شمعون کا انجام بھی افسوسناک تھا۔ اس کے داماد نے ریاست کی ہوس میں اسے اور اس کے بیٹوں کو دعوت کے بہانے قتل کر دیا، لیکن تیسرا بیٹا اس وقت موجود نہ تھا، یوں وہی بچا رہا۔ جب قاتل کی تلاش شروع ہوئی تو وہ بچا ہوا بیٹا قاتلوں کے جال سے بچ نکلا اور سلامتی سے تخت پر بیٹھا۔ یہی شمعون کا بڑا بیٹا تھا جو جان ہرکینس کے لقب سے یہود کا دوسرا خود مختار بادشاہ بنا۔ یوں سازشوں اور غداریوں کے باوجود سلطنت کا بار پھر ایک باصلاحیت وارث کے ہاتھ آیا۔ سکندر مکابی، جو کہ ایک بہادر اور جنگجو حکمران تھا، اپنے بھائی کی وفات کے بعد قید خانے سے نکل کر یہود کا چوتھا بادشاہ بنا۔ اس نے سلطنت کا دائرہ وسیع کیا اور وہ قدیم حدود بحال کیں جو حضرت داؤد کے دور میں تھیں، مگر اس کی فطرت میں کینہ پروری، شراب نوشی اور عورت پرستی شامل تھی۔ قوم کے بزرگ اس کے برے افعال سے سخت نالاں تھے۔ اس زمانے میں بیرونی خطرات کم ہو چکے تھے اور بنی اسرائیل مذہبی موشگافیوں میں الجھ گئے تھے۔ جیسے آج کے دور میں کچھ مسلمان فروعی اختلافات پر ایک دوسرے کی تکفیر میں مصروف ہیں، ویسے ہی اس دور میں بھی قوم گمراہی کا شکار ہونے لگی۔ کچھ لوگ کھلم کھلا شریعتی موسوی سے انحراف کرنے لگے۔ اس سے پہلے سکندر کے بھائی ارسٹی بوس نے اپنی ماں کو قید کر کے فاقوں سے مار ڈالا، بھائیوں کو قید کیا اور خود تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ لیکن اعضا ناراض ہو گئے، رعایا بیزار ہو گئی اور صرف 1 سال کے اندر وہ حسرت و افسوس کے عالم میں مر گیا۔ ان سب حالات سے پہلے شمعون کے جانشین نے اپنے ظالم بہنوئی کی جاگیر ضبط کی اور آبائی ریاست کے استحکام پر توجہ دی۔ اس نے پہلے بادشاہ شام سے اتحاد کا ڈھونگ رچایا، خراج اور امداد کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں شامی کمزوری بھانپ کر رومیوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا
और उनके साथ मुआहिदा किया। 3 दहाइयों तक उसने शान और शौकत से हुकूमत की और बनी इसराइल के लिए ये दौर अमन, आसाइश और खुशहाली का दौर कहलाया। बुस्तर मर्ग पर उसने सल्तनत का इंतज़ाम अपनी बीवी के स्पर्द किया और अपने बड़े बेटे को नज़्म और नस्ख की जिम्मेदारी देकर 105 कबल मसीह में दुनिया से रुखसत हुआ। सिकंदर ने 25 साल हुकूमत की और उसके बाद वो माह सिफर में दुनिया से रुखसत हुआ। उसकी बीवा मुल्का की नीडा सल्तनत यहूद की फरमानरवा बनी। चौंकी हेकले मुकद्दस की तौलियत औरत के लिए मुमकिन न थी, इसलिए ये मनसिब उसके बेटे हर कैस के सपर्द किया गया। मलका ने अपने शोहर की वसीयत के मुताबिक सल्तनत की दानिशमंदी से बागडोर संभाली, फरीसियों की मदद की, खजाने और फौज की नगहबानी की और उसके दौर में मुल्क में अमन कायम रहा। इससे पहले सिकंदर फरीसियों का हमायती था, जबकि उसके दौर में यहूद मुख्तलिफ मजहबी फ़र्कों में बटे हुए थे। एक गुरवा फरीसी कहलाता था जो शरियात के ज़ाहिर पर सख्ती से कारबंद था और किसी तावील को दरस्त नहीं मानता था। एक दूसरा तबका सदूकी अक्ल को मजहब पर गालिब समझता था, तकदीर का मुनकर था, रूह, अजाब और मलाइका पर यकीन नहीं रखता था। एक तीसरा गिरवा उसी कहलाता था जो नजात के लिए दुनियावी लज्जतों का तर्क ज़रूरी समझता, गोशत व शराब से परहेज करता और इबादत व रियाजत को असल ईमान मानता था। उसके अलावा सामरी फ़रका भी मौजूद था जो अलग मजहबी रवायात रखता और अफसानों को अकायद में शामिल करता था। हर फ़रका खुद को नजात का वाहिद रास्ता समझता और दूसरे ग्रोहों को गमराह या काफिर करार देता। फरीसी मारा जाता तो सदूकी जश्न मनाते, सामरियों की खुशी फरीसियों के गम पर होती। मुनाजरे और झगड़े रोज़ का मामूल थे। कौम बर्बाद हो रही थी, मगर हर फ़रका दूसरे की बर्बादी पर खुश होता था। इसी दौरान सिकंदर के खिलाफ साजिशें की गईं, लेकिन वो पेशगी अफशा हो गईं। नतीजतन बादशाह ने हजारों यहूदियों को सलीब पर लटका दिया। आज़ाद ख्याली, अक्ल परस्ती और मजहबी फितना परोरी ने कौम को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर कर दिया था। जैसा कि शायर ने कहा है, ब्रेन अक्ल व दानिश बायद ग्रीस्ट। एदोम के गवर्नर फ्रांटी पटर ने हर केस की इयानत की और अपने अरबी कबाइल के साथ मिलकर यहूद के खिलाफ जंग छेड़ दी, मगर फैसला के नतीजा अभी सामने नहीं आया था कि रोमियों ने दोनों फरीकों को मजबूर किया कि वो उनकी सालिसी को कबूल करें। इस मुदाखलत ने यहूदी खुद मुख्तारी पर एक गहरा असर डाला। सिकंदर के बेटों के माबीन खाना जंगी छुड़ गई और इसी बोलस कामयाब होकर सल्तनत यहूद का छठा बादशाह बना। मुतौली आजम सिर की तस्लीम न कर सका और फिरार हो गया। उधर दोमतल किबरी की जमहूरी सल्तनत के नामूर रोमी सिपा सालार पाम्पी, जिसने अपनी 35 साला उमारत में 22 बादशाहों को ज़ेर किया, 1000 किले और 900 शहर फतह किए और 19 नए शहर आबाद किए, जनूब की तरफ बढ़ रहा था। उसने अर्मीनिया और शाम की हुकूमतें तबाह करके यहूदिया का रुख किया। यरूशलेम के शहजादों के तनाज़े और बाहमी दुश्मनी को बुनियाद बनाकर पाम्पी ने वहां मुदाखलत की। बाज़ यहूदी जमायतों ने उसकी हुकूमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया और पाम्पी को अपनी ताकत के इजहार का मौका मिल गया। 3 माह तक शहर का मुहासरा जारी रहा। अहले यरूशलेम ने हिम्मत व इस्तिक़लाल से दिफा किया, मगर जब खुराक ख़त्म हो गई, फाका कशी शुरू हो गई और मुज़ाहमत दम तोड़ने लगी, तो शहर पाम्पी की फ़ौज के हाथों फतह हो गया। 12,000 यहूदी कत्ल कर दिए गए। यरूशलेम को शहर पनाह मुस्मा कर दिया गया। पाम्पी हेकले सुलेमानी में दाखिल हुआ, बल्कि उस मक़दस तरीन हिस्से में भी गया जिसे हमेशा पर्दों में छिपाया जाता था और जहां आम लोगों का दाखिला ममनुआ था। जंग के नतीजे में सल्तनत यहूद की खुद मुख्तारी ख़त्म हुई। गुलील और दीगर शहर कनान से निकालकर सौबा शाम में शामिल कर दिए गए। हर केस को दोबारा मुतवल्ली आज़म मुकर्रर किया गया और यहूद पर सालाना खराज आयद कर दिया गया। उस्टी पॉलिस को गिरफ्तार करके रोमी लश्कर के हमराह रवाना कर दिया गया। यूं 1 सदी बाद यहूद की खुद मुख्तार सल्तनत का खात्मा हुआ। अगरचा हुकूमत का नाम बाकी रहा, सिकंदर यूनानी की वफात के बाद उसकी सल्तनत उसके जर्नीलों में तकसीम हो गई और मिस्र का इलाका बतलिमुस के हिस्से में आया। तकरीबन 300 बरस तक उसके जानशीन वादी नील पर हुक्मरानी करते रहे। बतलिमुस अव्वल की वफात बशर कबल मसीह में हुई तो उसकी औलाद नाबालिग थी। उसने बस्तर मर्ग पर वसीयत की कि उसका बेटा बतलिमुस और बेटी क्लियोपेट्रा मुश्तरका तौर पर हुकूमत करें।
और उनके नाबालिग होने की सूरत में रोम की जमहूरी सल्तनत उनकी सरपरस्ती करे। रोमियो ने यह जिम्मेदारी खंदा पेशानी से कबूल की और अपने सिपह सालार पाम्पी को इन बच्चों का सरपरस्त मुकर्रर कर दिया। तालीम और तरबियत की आज़ादी सल्ब होने के बाद पाम्पी मिस्र जाने का इरादा रखता था, मगर इसको दार इस सल्तनत की तरफ वापसी की शदीद ज़रूरत पेश आई, जहां फ़रका वाराना झगड़ों ने उसे घेर लिया। इसी दौरान रोम के मशहूर व मारूफ जनरल जूलियस सीजर का आफताब इक़बाल चमका और पाम्पी का जवाल शुरू हुआ। लड़ाई में शिकस्त के बाद पाम्पी इज्जत बचाने के लिए मिस्र की तरफ फिरार हुआ। उस वक्त बतलीमोस सिर्फ 13 बरस का था। मुशीरों ने उसे मशूरा दिया कि अगर वो अपने शरीकी सल्तनत बहन क्लियोपेट्रा के साथ मुस्तकबल की जंग में रोमियो की हमायत चाहता है तो सीजर से ताल्लुकात बेहतर बनाए और पाम्पी को कत्ल करा दे। पाम्पी की कश्ती जैसे ही साहिल मिस्र पर पहुंची, बतलीमोस की अफवाज ने उसका इस्तकबाल किया, मगर इस्तकबाल के पर्दे में कत्ल की साजिश छिपी थी। जो नहीं पाम्पी ने खश्की पर कदम रखा, एक मिस्री ने उस पर पश्त से खंजर से वार किया। 2 पहलवानों ने उसके हाथ पकड़ लिए। पाम्पी ने चादर से अपना चेहरा छिपा लिया, जमीन पर गिरा और तड़प तड़प कर जान दे दी। सीजर कामयाबी के निशे में झूमता हुआ पाम्पी के ताक़ुब में मिस्र पहुंचा, मगर उसकी आमद से कबल ही पाम्पी कत्ल हो चुका था। सीजर के हमराह सिर्फ 800 सवार और 3300 पैदल फौजी थे। इस्कंदरिया के साहिल पर लंगर अंदाज होकर जूलियस सीजर ने मिस्र की हुकूमत नाबालिग बादशाह के वली और सरपरस्त की हैसियत से अपने हाथ में लेने की कोशिश की। मुल्क की बदामनी और बतलीमोस व क्लियोपेट्रा के दरमियान इख्तिलाफात देखकर उसने दोनों को अपने रोबरो तलब किया ताकि निज़ा का तसफिया कर सके। क्लियोपेट्रा सल्तनत से महरूम थी, जबकि उसका भाई पूरे मुल्क पर काबिज था। मिस्र एक खुद मुख्तार सल्तनत था, इसलिए सीजर के ये अहकाम मुदाखलत शुमार किए गए। कौम प्रस्त अनासिर ने उस पर नाराज़ी का इजहार किया और जंग की तैयारी शुरू कर दी, मगर सीजर ने वजाहत की कि बादशाह की वसीयत के मुताबिक वो नाबालगों का सरपरस्त है और उनकी बाहमी रंजिशों के तस्फिया का हक रखता है। राया खामोश हो गई। मुकदमा की सम्मात शुरू हुई और दोनों फरीकों के वकला दलाइल देने लगे। क्लियोपेट्रा बहुत ज़हीन और चालाक थी। उसने सोचा कि उसका हुस्न सीजर पर असर डाल सकता है, चुनांचा एक अनोखी तदबीर की। अपने मुलाजिम खास को हिदायत की कि वो उसे कपड़ों में लपेटकर एक गिठरी की शक्ल में सीजर के महल तक ले जाए। मुलाजिम ने उसे कपड़ों से ढांपा, लिकड़ी के सहारे उठाकर महल के दरवाजे पर पहुंचा और इत्ला दी कि वो रोमी सरदार के लिए एक तहफा लाया है। जब सीजर के खलूत खास में गुठरी पेश की गई और गरह खोली गई तो हुस्न व जमाल की मुजस्सम तस्वीर क्लियोपेट्रा सीजर के सामने खड़ी थी। उसने सिर झुकाकर इताअत का इजहार किया। रंगीन मिजाज जनरल के दिल पर हुस्न ने कारी ज़रब लगाई। जो आंखें पहले ही हुसैन चेहरों की आदी थीं, वो क्लियोपेट्रा के हुस्न से मशहूर हो गईं। सीजर ने फैसला किया कि भाई बहन मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगे। ताहिम मिस्र का वजीर आज़म क्लियोपेट्रा के खिलाफ था। उसने रोमियो के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, मलका पर बदअखलाकी के इल्जामात लगाए और राया को सीजर के खिलाफ भड़काना शुरू किया। मिस्र की हालत रफ्ता रफ्ता बदतर होती गई। क्लियोपेट्रा को अनकरीब मुतलक लिनान हिकमरान बनाने की तैयारी थी, मगर ये बात मिस्रियों को गवारा न हुई। बगावत की आग भड़क उठी। मिस्री सिपा सालार 20,000 फौज के साथ इस्कंदरिया की तरफ बढ़ा ताकि सीजर को वहां से निकाल बाहर करे। सीजर ने अपनी मुख्तसर सी फौज को दानिशमंदी से गली कोचों में फैला दिया और होशियारी से मुकाबला किया। मिस्री बागियों ने रोमी बीड़े को आग लगाने की कोशिश की, मगर सीजर ने बरक रफ्तारी से उनके जहाज जला दिए। उन शाला फशां जहाज़ों ने बहते बहते घाट के करीब आग लगा दी और यूं शहर के कई मकानात लपेट में आ गए। इस हादिसे का सबसे बड़ा नुकसान इस्कंदरिया के उस अजीम कतब खाने को पहुंचा, जिसमें 4 लाख नायाब और कीमती किताबें महफूज थीं। ये इल्म का खजाना राख का ढेर बन गया। बादिज़ां इस सान्हे का इल्ज़ाम अरबों पर थोपा गया और यूरोप में उस पर मशहूर इस्तिदलाल घड़ा गया कि अगर किताबें कुरान के मुताबिक थीं तो फालतू थीं और अगर उसके खिलाफ थीं तो जलाना वाजिब था। हालांकि वो तबाही उसी वक्त हो चुकी थी जब सीजर के बीड़े को आग लगी थी। जंग तवील हो गई
और सेजर ने मजीद कमक के लिए दूसरे इलाकों से फौजें बुलाएं। एशिया कोचक से जहाज़ों का बीड़ा आया, शाम और साहली इलाकों से सिपाही पहुंचे और ईदोम के सरदार एंटीपीटर, जो हरकेनस बादशाह यहूद का मुशीर खास था, 3000 यहूदियों के साथ मदद को आया। यहूदियों ने रास्ते फराहम किए और कमक बगैर मुजाहमत सीजर के कैंप तक पहुंच गई। इन ताज़ा दम फौजों की आमद से जंग का रख बदल गया। नील के किनारे फैसला कुन मार्का हुआ, जिसमें सीजर को मुकम्मल फतेह हासिल हुई। बतलिमोस भाग निकला, मगर दरिया में डूबकर हलाक हो गया। यूं इस्कंदरिया और सारा मिस्र रोम की इताअत में आ गया। सीजर कुछ उर्सा मिस्र में रहा और फिर मुल्की ज़रूरतों के बायस रोम वापस रवाना हुआ। क्लियोपेट्रा नील की मुकम्मल हकमरान बन गई। इधर एंटीपीटर ने इंतहाई नाजुक मौके पर कीमती खदमात अंजाम दें। इसकी मदद का सीजर ने दिल से एतराफ़ किया और उसे इनाम व एजाज से नवाजा गया। कनानी नस्ल एंटीपीटर, जो सूबा एदोम का बाशिंदा था, बनी इसराइल का हमसाया और शरियाती मूसवी का पैरोकार था। अगरचा वो नस्लन इसराइली न था, मगर मजहबन यहूदी शुमार किया जाता था। जुलियस सीजर की अनायत से उसे मिस्र व शाम में शाही अख्तियारात मिले और उसने नहायत दानिशमंदी और खैरख्वाही से सल्तनत का नज़्म संभाला। मुल्क की इस्लाह और इंतज़ाम के लिए उसने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अपने बड़े बेटे को यरूशलेम का हाकिम मुकर्रर किया, जबकि दूसरे बेटे हीर्ड को गलीली का गवर्नर बनाया। हीर्ड जवान, ज़हीन, शुजा और मुंतजिम था। उसने अपनी हुकूमत के दौरान चोरों, डाकुओं और बागियों का कला कमा किया और सूबे में अमन व अमान कायम कर दिया। मगर एंटीपीटर की हिक्मरानी राया को पसंद न आई। अवाम देखते थे कि बादशाह हरकीनस बेअख्तियार है और असल इख्तिदार एंटीपीटर के हाथ में है। हीर्ड की मुतलक इलानी खुसूसन नापसंद की जाती थी। उस पर जुल्म व सितम और कत्ल व गारत के इल्ज़ामात आयद हुए, जिस पर उसे अकाबर कौम की मजलिस इंतज़ामिया के सामने पेश होने का हुक्म हुआ। वो अपने वालिद के हुक्म पर अदालत में हाजिर हुआ, मगर इसी दौरान शाम के रोमी गवर्नर का एक फरमान भी यरूशलेम पहुंचा, जिसमें हरकेनस को हदायत दी गई थी कि हीर्ड की मुकम्मल हमायत और हिफाजत की जाए। रवायत है कि हीर्ड, जिसे एक मुल्ज़म के तौर पर तलब किया गया था, शहजादों जैसी शान व शौकत के साथ अदालत में पेश हुआ। उसने सरख लिबास ज़ैब तन किया हुआ था, बाल तरतीब से बंधे थे और मुसल्लह मुहाफिज इसके साथ थे। ये रोब वो दबदबा देखकर मुखालिफीन पर खौफतारी हो गया। कोई फर्द जुर्म आयद करने की हिम्मत न कर सका और हीर्ड को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। इसी दौरान यहूदिया, सामरा और गलील के तमाम मुल्की और माली उमूर की निगरानी एंटीपीटर के हाथ में दे दी गई। हरकीनस हैकल मुक़द्दस का मुतौली आज़म तो रहा, मगर कनहान की असल हुक्मरानी अब एंटीपीटर को तफवीज़ हो चुकी थी। इसी की सिफारिश से यहूदियों को शरीयत पर अमल की इजाज़त मिली, जबरी फौजी खिदमत से मुस्तस्नी करार पाए और यरूशलेम की शहर पनाह दोबारा तामीर करने की इजाज़त वापस ले ली गई। जुलियस सीजर की वापसी के बाद जब वो रोम में मुतलक इल-यूनान हिकमरान यानी डिक्टेटर मुकर्रर हुआ, तो उसको रोम तल केबरी की वसीया सल्तनत पर मुकम्मल शाही अख्तियारात हासिल हो गए। उसने 500 से ज़ायद जंगें जीती थीं, 1000 से ज़्यादा शहर फतह किए और 1 करोड़ से ज़ायद इंसानों का खून उसकी फतूहात से जुड़ा हुआ था। मगर इतनी अजीम फतूहात के बावजूद अमन और सुकून की ज़िंदगी उसके नसीब में ना लिखी थी। जब दाखिली ख़तरात ख़त्म हो गए और इक़्तिदार की राहें हमवार होने लगे, तो तख्त व ताज का ख्वाब आंखों में सजा। वो कवानीन की मजलिस में सोने के तख्त पर बैठा था और बादशाही का ऐलान होने ही वाला था कि एक साजिशी गरवा ने उस पर खिंजर से हमला कर दिया। एक साजिशी ने पहला वार किया, बाकी झपट पड़े और सीजर को 23 जख्म लगे। वो ज़मीन पर गिरा और जान दे दी। ये वाक़या कब्ल मसीह पेश आया। उस कत्ल के बाद पूरे रोम में हलचल मच गई। सीजर की मौत ने रोमी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। इस मौके पर यहूद ने मजलिस कवानीन से मरासिम ताज़ियत अदा किए और अपनी साबिक़ा मुराआत व मनासिब की बहाली की दरख्वास्त की। हालात की नज़ाकत के बावजूद यहूद की दरख्वास्त मंजूर हो गई और हरकीनस की तौलीत और एंटीपीटर की हुकूमत बहाल रही। मगर एंटीपीटर की दुश्मनी किसी से छुपी न थी। उसी दौरान एक यहूदी जर्नील, जो अवाम में मकबूल था, उससे हसद करने लगा और उसे जहर देकर हलाक कर दिया। एंटीपीटर की मौत पर यहूदियों में गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई।
हियर्ड ने कातिल के खिलाफ शाम के रोमी गवर्नर से शिकायत की और आखिरकार कातिल को किसास में कत्ल कर दिया गया। ताहिम एंटीपीटर की मौत के बाद अवाम में हियर्ड के खिलाफ नाराज़ी फैलने लगी। इसी नाराज़ी के पेश नज़र उसके खिलाफ एक शिकायतनामा रोम भेजा गया, जो सीज़र के शरीक इक़्तिदार मार्क एंटनी के पास पेश किया गया। मार्क एंटनी नौजवानी में महज एक आम फौजी सवार था। जूलियस सीज़र ने उसे अपने बॉडीगार्ड के दस्ते में शामिल किया और रफ्ता रफ्ता उसे एली अहदों पर फाइज किया, यहाँ तक कि अपनी हुकूमत में शरीक भी बना लिया। सीज़र के कत्ल के वक्त उसका भतीजा एक्टुविस रोम में मौजूद न था। चनांचा सीज़र का सारा सियासी और माली असर व रसूख मार्क एंटनी के कब्जे में आ गया और वो रोमता अलकबरी का एक ज़बरदस्त तरीन मुदब्बर बन गया। हियर्ड को इस वक्त सख्त ज़क उठानी पड़ी जब एंटीपीटर की गैर मौजूदगी ने हालात को यकसर बदल दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा पांसा पलटा कि इसराइलियों को अपनी शिकस्त की तलाफी और हियर्ड से बदला लेने का मौका हाथ आ गया। असल में फारिस के शमाल में एक तर्कमान नस्ल की कौम पार्थीन के नाम से जानी जाती थी, जो तारीख में अपना मकाम रखती है। उन्होंने सिकंदर आज़म के जानशीन यूनानी हकमरानों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाकर बगावत की। नश्तरा क़ब्ल मसीह में उन्होंने इल्म बगावत बुलंद किया और आहिस्ता आहिस्ता ईरान और तौरान के पूरे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। उनका इक़्तिदार तकरीबन 500 साल तक कायम रहा और उन्होंने रोमी सल्तनत को कई बार शिकस्त देकर उसकी ताकत को चैलेंज किया। इसी पार्थीन कौम के आखिरी बादशाह इरावान को सिर ईस्वी में आर्दाशीर ने शिकस्त देकर दौलती सासानिया की बुनियाद रखी, जो बाद में अरबों के हमलों तक ईरान पर हुकूमत करती रही। उन्हीं दिनों एंटनी की शाम से गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाते हुए शाम और यहूदिया के मुखालिफ अनासिर ने तर्कमान पार्थियों को अपने इलाकों पर चढ़ाई की दावत दी। चनांचा शाम, फिलिस्तीन और एशियाई कोचक पर पार्थियों ने कब्जा जमा लिया। उनकी सरपरस्ती में इसराइलियों ने माजूल शाह के पूते और उस्तोबोलुस के बेटे अंतिगोन को बनी इसराइल का बादशाह बनाया। इसी दौरान हेर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी तहकीर की गई और उसके सिर के बाल काट दिए गए ताकि वो दोबारा मुतौली आज़म न बन सके, क्योंकि मोसेक शरियात के मुताबिक गैर मुकम्मल या बदनमा शख्स हेकले मुक़द्दस का खादिम या मुतौली नहीं बन सकता था। हियर्ड का भाई कैद की सोबतें बर्दाश्त न कर सका और उसने खुदकशी कर ली, मगर हियर्ड किसी न किसी तरह कैद से बच निकला। उसने अपने अहल व अयाल, माल व दौलत को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और खुद रोम की तरफ रवाना हुआ। रोम में उस वक्त भी इंतशार का आलम था। जूलियस सीज़र के कत्ल के बाद सियासी कशमकश अपने उरूज पर थी। सीज़र के कातिलों से सख्त इंतकाम लिया जा रहा था, जबकि उसके भतीजे ऑक्टेवियस और साबिक शरीक इक़्तिदार मार्क एंटनी के दरमियान झगड़े और साजिशें उरूज पर थीं। जब हियर्ड पनाह गुज़े की हालत में दारुल सल्तनत रोम पहुंचा, इस वक्त सल्तनत रोम की बाग दूर दो इश्खास के हाथ में थी, ऑक्टेवियस, ऑक्टेवियन और एंटोनी। दोनों ने सल्तनत को आपस में तकसीम कर लिया था। मशरिक एंटनी के हिस्से में आया था और मगरिब ऑक्टेवियस के तहत था। उन दोनों के दरमियान उस वक्त ताल्लुकात खुशगवार थे, हत्ती कि एंटनी ने ऑक्टेवियस की बहन ऑक्टेरिया से शादी भी कर ली थी और रियासती उमूर बाहमी मशूरे से अंजाम पा रहे थे। हियर्ड ने रोम पहुंचकर एंटनी को अपनी तमाम मुसीबतें, बेवतनी और अपनी सल्तनत के ज़वाल की दास्तान सुनाई। एंटनी ने उसकी मदद की ठानी और उसे सीनेट, मजलिस वज़र क़वानीन के सामने पेश किया। सीनेट में एंटनी और ऑक्टेवियस दोनों ने मरहूम एंटीपीटर की खदमात और हियर्ड के मसाइब का भरपूर जिक्र किया। सेनेट ने हियर्ड की हालत पर रहम खाया और मुत्तफ़क़ा तौर पर उसे कन्हान यहूदिया का हिक्मरान तस्लीम कर लिया। उसके हरीफ एंटीगोन्स को मुजरिम, कौमी दुश्मन और सज़ा का मुस्तहिक करार दिया गया। उस कार्रवाई को कानूनी और मजहबी जवाज़ देने के लिए मंदिर में रस्म अदा की गई और रोमी देवताओं के नाम पर कुर्बानियां दी गईं। अब हेरोड शाह यहूदिया के मनसिब पर फायज हो चुका था, लेकिन हकीकी हुकूमत हासिल करने के लिए उसे अब भी मैदान जंग में उतरना था। इसी असना में रूमी जर्नैल सोसिनियोस ने पार्थियों को शाम से निकाल बाहर किया था और उनका असर व रसूख खत्म हो चुका था। हियर्ड ने एक मजबूत फौज तैयार की और एंटीगोन्स से कई महाजों पर जंग की। एंटीगोन्स शिकस्त खाकर यरूशलेम में महसूर हो गया।
कनान का बाकी सारा इलाका हियर्ड के कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन यरूशलेम की पुराज़म राया और मजबूत फसीलों ने उसे 3 साल तक शहर में दाखिल न होने दिया। हियर्ड ने आखिरकार रोमी फौज की मदद तलब की और उनकी इयानत से शहर पर चढ़ाई की गई, लेकिन तवील मुहासरे से रोमी फौजी बराफरुख्ता थे। जैसे ही शहर फतेह हुआ, रोमी सिपाहियों ने कत्ल व गारत का आगाज कर दिया। यरूशलेम की मुकम्मल तबाही का अंदेशा था। हियर्ड ने बड़ी रकम रिश्वत के तौर पर अदा करके रोमियों को रोका और शहर को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। एंटीगोन्स गिरफ्तार हुआ और बादिज़ां कत्ल कर दिया गया। यूं हियर्ड ने बादशाहत हासिल की, लेकिन उसका आगाज फौजी कब्जे और कत्ल व गारत के साए में हुआ। यरूशलेम पर उसका कंट्रोल एक मातहत सूबे की तरह कायम हुआ। सीनेट के फैसले से उसकी बादशाहत को कानूनी हैसियत हासिल हुई और यहूदियों के मकाबी खानदान का बाब मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। उनके आवान व अंसार को कत्ल किया गया और उनकी सियासी ताकत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। हियर्ड के दौर में जब मकाबी खानदान का खात्मा हुआ तो उनके अहदे और जायदादें जब्त कर ली गईं। मजहबी क़ियादत यानी मुतवल्ली आज़म का अहदा बज़ाहिर हर केस के लड़के अरिस्टिबुलस को मिलना चाहिए था, जो न सिर्फ हियर्ड का साला था बल्कि हर तरह इस बुलंद मनसिब के लायक भी था। लेकिन उसके बावजूद ये अहदा एक और इसराइली को सौंप दिया गया जो बाबल से ताल्लुक़ रखता था। ये फैसला हियर्ड की बीवी को बहुत नागवार गुजरा। उसने अपनी खांगी जिंदगी में शूर व शराबा शुरू कर दिया और खफिया तरीक़ों से अपने भाई के हक के लिए कोशिशें शुरू कर दें। उसने मिस्र की मलका क्लियोपेट्रा से नजराने और तहाइफ भेजकर ताल्लुक़ कायम किया ताकि वो इस मामले में एंटनी से सिफारिश करे। इधर एंटनी और इक्टवीस के दरमियान तल्क़ात अब बिगड़ चुके थे। एंटनी एक मौके पर मिस्र आया तो वहाँ क्लियोपेट्रा के हुस्न व जमाल का ऐसा असर हुआ कि सब कुछ भला बैठा। उसने इक्टवीस की बहन इक्ट्रिया को तलाक दे दी और अपनी सल्तनत के मशरकी हिस्से हती कि मिस्र तक क्लियोपेट्रा के हवाले कर दिए। उन दोनों ने इस्कंदरिया में फतूहात का जश्न मनाया और ऐश व अशरत की जिंदगी में खो गए। क्लियोपेट्रा के इशारे पर एंटनी ने हियर्ड को मजबूर किया कि वो मौजूदा मुतवल्ली आज़म को अहदे से हटाकर अरिस्टिबुलस को ये मनसिब दे दे। अरिस्टिबुलस को जब ये अहदा मिला तो चंद ही रोज में वो अवाम में बेहद मकबूल हो गया। हियर्ड उसकी मकबूलियत से खाइफ हो गया और उस पर शक करने लगा। एक दिन जब अरिस्टिबुलस हौज में गसल कर रहा था, हियर्ड के इशारे पर उसे वहां गरक कर दिया गया। इस कत्ल पर इकाबरी यहूद शदीद बरहम हुए। जब क्लियोपेट्रा को इस सानहे की खबर मिली तो वो पहले ही हियर्ड से नाराज थी, क्योंकि उसने कुछ उर्सा कबल उसके मोहब्बत भरे पैगाम को ठुकरा दिया था। अब उसे बदला लेने का मौका मिल गया। क्लियोपेट्रा ने एंटनी पर जोर दिया कि हियर्ड को अरिस्टिबुलस के कत्ल के बदले में सजाए मौत दी जाए। एंटनी को हियर्ड के खिलाफ कदम उठाने में हचकचाहट थी, लेकिन इस वक्त रोम में हालात अक्सर बदल चुके थे। रोमन सल्तनत ने एंटनी और क्लियोपेट्रा की गैर संजीदा और शानदार तर्ज जिंदगी, सियासी बेराह रवि और रोम के मफादात से गद्दारी पर उनके खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया। हकीकत में ये जंग एंटनी के खिलाफ थी, क्योंकि वही असल ताकत और फैसला साज था। इस जंग की बुनियादी वजह ये थी कि एंटनी रोम की निस्फ सल्तनत पर काने न था, बल्कि वो मुकम्मल अख्तियार हासिल करने के ख्वाब देख रहा था। एंटनी बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसे इस मकसद के लिए दौलत की शद जरूरत थी। हियर्ड ने मौका भानप कर रिश्वत के जरिए अपनी जान बचाई और उसी बहाने अपनी हुकूमत भी बरकरार रखी। उसके बाद एंटनी ने जजीरा सामूस के करीब एक अजीम इल्शान बीड़ा जमा किया। उसके हमरा 2 लाख प्यादे और 12,000 सवार मौजूद थे और 6 मुख्तलिफ सल्तनतों के बादशाह खुद उसके साथ शरीक थे। परशीलम समेत 5 रियासतों की फौजें उसकी क़ियादत में थीं। उस अजीम बीड़े में 500 से ज़ायद जहाज शामिल थे, जो नहायत अजीब व गरीब तर्ज के थे। कई जहाज़ों में कई दर्जे और बुर्ज बने हुए थे, लेकिन सबसे खूबसूरत कश्ती क्लियोपेट्रा की थी। उसके गुलाबी झंडे और सरख बादबान जब हुआ में लहराते तो यूं महसूस होता गविया सरखी माइल शफक का महल पानी पर तैर रहा हो। एंटनी का जहाज भी करीब करीब इतना ही शानदार और दलक्ष था। फौजी बाजे बज रहे थे और उनकी पुरासिर मौसीकी फजा को चीरती आसमान तक जा रही थी। मूर्खीन लिखते हैं कि दुनिया ने कभी उससे ज्यादा शान और शौकत वाला दलक्ष और बावकार फौजी मंजर नहीं देखा था। क्लियोपेट्रा
जो एक वक्ती अजमत की देवी बन चुकी थी, इस मंजर से ऐसी मखमूर थी कि वो खुद को तमाम दुनिया की बेताज मलका समझने लगी थी। इसे यकीन था कि रोम की सल्तनत तबाह हो जाएगी और वो नाकाबिल शिकस्त समझी जाएगी। इधर एक्टवीस के पास न इतना बड़ा बीड़ा था, न इतनी अफवाज। उसके साथ सिर्फ 80,000 प्यादे थे और उसके जहाज भी एंटनी के बीड़े के मुकाबले में कहीं कम थे। लेकिन एंटनी के ब्राकस, उसके पास तजर्बाकार सिपाही और मिलाह थे। वो कालीन के नहीं, मैदान जंग के शेर थे। एंटनी के जनरलों ने मशूरा दिया कि चूंकि रोमी बहरिया कमजोर है, तो इसलिए बेहतर होगा कि क्लियोपेट्रा को मिस्र वापस भेज दिया जाए और जंग खुश्की पर लड़ी जाए। लेकिन जिसे खुदा तबाह करना चाहे, उससे पहले उसकी अक्ल छीन लेता है। एंटनी क्लियोपेट्रा का असीर इश्क बन चुका था। उसे नाराज करना मुमकिन न था। चुनांचे उसने क्लियोपेट्रा की बात मानकर समंदर में जंग का फैसला कर लिया। सितंबर की पहली तारीखों में ओक्टीम के मकाम पर लड़ाई शुरू हुई। ये जंग दरअसल दुनिया की हुकूमत के लिए लड़ी जा रही थी, मगर नाजुक मिजाज क्लियोपेट्रा के लिए क़िताल व जदाल का शूर नाकाबिल बर्दाश्त था। इश्क के नाज व नुखरे में पलने वाली ये गल बदन मैदान जंग के हंगामे की ताब न ला सकी। हीर्ड ने बैरूनी खतरात से नजात पाने के बाद अपनी हुकूमत को मजबूत और मुस्तकिल बनाने की भरपूर कोशिश की। उसके अहद में कनान को वो सब्जियां, फलाह व बहबूद और तरक्की नसीब हुई जो उर्से से मफकूद थी। मुल्क में आलिशान किले तामीर हुए। दारुल सल्तनत में एक शानदार महल बनाया गया जो बेशकीमत साज व सामान से आरास्ता था। रोम के तर्ज पर खेल तमाशे नीलम में राइज हुए और तहजीब व तमद्दुन के लिहाज से नमायां पेशरफ्त हुई। हीर्ड ने हेकले मुक़द्दस की इमारत को इसरिनु तामीर करने का फैसला किया, क्योंकि बाबल से वापसी के बाद जब इफलास का ज़माना था, इस वक्त एक सादा इबादत खाना बनाया गया था जिसकी तामीर नाक़िस और सादा मवाद से हुई थी। अगरचा उसकी हुकूमत में ज़ाहिरी तरक्की हो रही थी, मगर बनी इसराइल अब भी हीर्ड से नाखुश थे। उनका एतराज़ ये था कि हीर्ड नस्लन अदोमी था और एक अजनबी हुकूमत के साये में हुकूमत करता था। उन्हें उस पर एतमाद न था। इधर रोम के सियासी उफ़्क़ पर बड़ी तब्दीलियां हो रही थीं। क्लियोपेट्रा और एंटनी की शिकस्त करीब आ चुकी थी। जब एक टीम के मकाम पर जंग जोर पर थी और फतह मिस्रियों की करीब महसूस हो रही थी, तो अचानक क्लियोपेट्रा खौफजदा हो गई। उसने अपना बीड़ा लेकर वापस मिस्र की तरफ रख्त सफ़र बांधा। एंटनी ने जब अपनी महबूबा के जहाज मिस्र की तरफ जाते देखे, तो इश्क के जुनून में दुनिया की बादशाही को ताक पर रखकर खुद भी उसके पीछे चल पड़ा। एंटनी की अजीम उलशान खशकी की फौज ये हैरत अंगेज मंजर देखकर हैरत में पड़ गई और बलाखिर उसने हथियार डाल दिए। एक्टवीस की इताअत कबूल की गई और जंग खत्म हो गई। एंटनी की इस बज़दली से एक्टवीस को फतह नसीब हुई और वो वाहिद फातिह बनकर अभरा। जब शिकस्त की खबर क्लियोपेट्रा तक पहुंची, तो उसने एक्टवीस को रिझाने की कोशिश की ताकि अपनी इज्जत और सल्तनत बचा सके, मगर नाकाम रही। ज़ल्लत और गिरफ्तारी के डर से उसने एक मकान में छपकर अपनी मौत की अफवाह फैलाई। एंटनी ने यह सुनकर सीने में खंजर घोंप लिया। जब क्लियोपेट्रा ने उसकी लाश देखी, तो उसने भी अपनी जान दे दी। रवायत है कि उसने एक जहरीले सानिब से कटवाकर खुदकुशी की। इस तरह एक्टवीस ने रूम की वसीया सल्तनत पर तन्हा कब्जा जमा लिया। हीर्ड ने फौरन एक्टवीस को फतह की मुबारकबाद पेश की और खुशामदाना अंदाज में अपनी वफादारी जाहिर की। इस तदबीर से वो उसी तरह एक्टवीस का मंजूर नज़र बन गया जैसा पहले एंटनी के दरबार में था। हीर्ड ने अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में बेसुकूनी और खौफ का सामना किया। हर वक्त अपनी जान के खतरे में मुब्तला रहता था। जिस किसी पर जरा सा शक भी होता, फौरन जलाद के हवाले कर दिया जाता। इस अंदेशे और इत्तराब के आलम में उसने कई शादियां की ताकि कल्बी सुकून हासिल हो, मगर हकीकी राहत कभी नसीब न हुई। एक मौके पर वो इस कदर गुस्से में आ गया कि अपनी बीवी के कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया, यहाँ तक कि अपनी औलाद तक को हलाक करवा दिया। नतीजतन उसके दुश्मनों में इजाफा होता चला गया। खास तौर पर उसके रिश्तेदार और करीबी आज़ा इससे शदीद खफा हो गए। इस दौरान उसने हीकल मुक़द्दस की तामीर नौ का अजीम मंसूबा शुरू किया। पुराने माबद को गिराने की इजाज़त उसे सिर्फ इसी वक्त मिली जब उसने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई
कि नई इमारत के तमाम साज व सामान पहले से मौजूद हैं। उसके बाद तामीर का आगाज हुआ। नई इमारत यूनानी तर्ज की, वसीया, दिलकश और इंतहाई खूबसूरत थी। इसमें बेशकीमत संगमरमर इस्तेमाल हुआ और बेदरीग दौलत खर्च की गई। ये कारनामा इसराइली कौम के लिए खुशी का बायस बना और हीयड को सरदार व सेकदर सैदा और हर दिल अजीज़ी हासिल हुई। लेकिन उसकी शख्सी पॉलिसियों, ख़ास तौर पर ज़ालमाना इक़दामात की वजह से यह मकबूलियत पायदार न रही। बिलाखिर हेरोड शदीद बीमारी का शिकार हुआ। बोस्त्रे मर्ग पर जाते हुए उसने अपनी सल्तनत को अपने बेटों में तकसीम कर दिया। अरखलाउस को एलोम, होदिया और सामरिया दिए गए। हीरोदरस को गलील का हाकिम बनाया गया और फुल्प को आमतूरिया समेत चंद दीगर मुतफर्रिक सूबे सौंपे गए। अरखलाउस ने अपना पायश तख्त परशीलम में कायम किया, लेकिन उसकी हुकूमत जुल्म व सितम से भरपूर थी। अवाम उसके मजालिम से आजिज आ चुके थे। आखिरकार यहूदियों ने रोम के शहनशाह से उसकी शिकायत की। अरखलाउस को माजूल किया गया, जलावतन कर दिया गया और परशीलम की हकमरानी बराह रास्त एक रोमी गवर्नर के स्पर्द कर दी गई। उसके बाद सल्तनती कन्हान की हैसियत एक बाजगुजार रियासत की भी न रही, बल्कि वो सल्तनती रोमा का महज एक मामूली सूबा बनकर रह गई। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।